Hello students, warm greetings to everyone. I, Dr. Manalika Ankar, working as Assistant Professor in the Department of ABSD, welcomes you in the digital learning platform of Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Today, we are going to know about ratio analysis. The learning outcome of the presentation will be, at the end of the presentation, you will be able to know about the meaning, objectives, limitations, significance of ratio analysis. Along with this, you will also be able to learn about various types of ratios which are used in business. So, let's start. Ratio analysis can be said as a technique of financial analysis. It can be said as a tool of analyzing capital structure. It determines the relationship between various items and assists management in its basic functions of forecasting, planning, coordination, control, and communication. It provides guides and clues, especially in spotting trends towards better or poor performance um, of the company and in finding out significant deviation from any average or relative applicable standards. Basically, it is the most powerful tool of financial analysis. It measures short term and long term financial position of the company, making the accounting data simple and easy. They are actually useful in interfirm comparison and setting standards and having the trend analysis. Basically, what does ratio refers? Ratio refers to the numerical or quantitative relationship between two variables. So it can also be said as this is the process of determining and presenting the relationship of items or groups of items in the financial statements. It can be expressed in many ways, such as proportion, turnover, percentage, and many more. इसको हम simply कहें तो ratio is simply one number expressed in terms of another. ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर वेरियस रेशियोज फाइंड आउट करे जाते हैं. It is used to show the important factors of business and also useful in locating weak points of the business. Ratios से हमको ये पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वीक पॉइंट्स है वो हमारे सामने आ जाते हैं. अच्छा, दिस इज द रिलेशन ऑफ टू होमोजीनियस वैल्यूज. मतलब कि जब दो वैल्यूज का क्वांटिटेटिव रिलेशन इस तरह से हो कि एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से जो रिलेशन है वो एक्सप्रेस होता है, तो इसको रेशियो कहते हैं. Next is objectives. There are some objectives of ratio analysis. It expresses and simplifies the accounting figures. ये अकाउंटिंग फिगर्स को सिंप्लीफाई करती है, हमें एनालिसिस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करती है. हमारे जो इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम होती है, एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फिगर्स होती हैं, या बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है उनसे रिलेटेड कुछ फिगर्स होती है. ऐसी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उनका एलाब्रेशन अगर करा जाए तो कई बार ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इसका एनालिसिस करना. तो जो रेशियो एनालिसिस है वो इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की का एक टेक्निक ही है और ये इस प्रोसेस को इजी करता है. इट एनालाइजेस फाइनेंशियल पोजीशन. रेशियो एनालिसिस हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करता है. जैसे कि मैंने बताया कि बैलेंस शीट के फिगर्स है या पीएनएल के फिगर्स है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करता है, उनके फिगर्स का एनालिसिस करता है. तो ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी एनालाइज करता है. नेक्स्ट इज इट असेसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी.
So ratio analysis is used as a tool for measuring the efficiency of measuring the operational efficiency of business, or can be said that it is the tool for measuring the efficiency of the management. Next is financial forecasting and planning. Say that as we know that financial ratios are usually used to show from the past financial records of trend of cost, sales, profit and other important factors, so that quick forecasting can be made for future. Next is it locates weak points of business. It analyzes numerical values of our balance sheet, so we can come to know the weak points of our business. We can come to know कि where we are गेटिंग लो इन द बिजनेस, हमारे पास में कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनका हमें प्रॉपर ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऑप्टिमम आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो हम वो पॉइंट्स को स्पॉट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी. इट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न इटसेल्फ विद that of other firms, as inter-firm comparison is made on the basis of accounting ratios to compare the performance of itself and other firms. Next is it helps in control. It is used to have an effective ratio analysis is basically used to have an effective control over its performances, over its cost, and it is useful in locating the weak points of the business and take preventive measures also that I already told you before. ऑब्जेक्टिव्स को अगर इजी वे में समझे तो ये कह सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एट्सेट्रा. तो इट हेल्प्स इन फोरकास्ट इन फ्यूचर इवेंट्स. रेशियो एनालिसिस में फैक्ट्स की स्टडी होती है और रेशियो एनालिसिस के थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी सिस्टमैटिकली एनालाइज करी जा सकती है, सिस्टमैटिकली एनालाइज करी जा सकती है. ये फ्यूचर के डिसीजंस वगैरह लेने में हेल्पफुल होता है. बिग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कॉन्साइज कर दी जाती हैं बाय द मीन्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ सिग्निफिकेंस भी होता है रेशियो एनालिसिस का, जैसे कि डिटरमाइंस द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी of the firm. A concern, because we know that a concern with good solvency can easily get long term loans with low interest rates. एंड एनालिसिस में हेल्प करती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इट इज़ यूज टू शो वेदर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज़ इम्प्रूविंग या डिक्लाइनिंग पुराने सालों से ओवर द ईयर्स. तो विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस ये पता लग सकता है कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. ये it is used to determine the liquidity of the firm, liquidity position of the firm. और लिक्विडिटी कंडीशन तभी हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड होती है इफ़ इट इज़ एबल टू मीट इट्स current obligations, and it helps in communication also. Ratio analysis plays an important role in informing about the progress which is made by the firm और दूसरे पार्टीज के थ्रू भी. तो कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज़ में आता है. रेशियो एनालिसिस उसको सिंपल कर देता है, रेशियो एनालिसिस फिगर्स वगैरह को भी सिंपल कर देता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी एक्चुअली यूज़फुल ऑल्सो. बट अगर इन रेशियोज़ का मिसयूज़ करा जाए तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो गलत होते हैं, रिजल्ट्स गलत निकलते हैं. और इसी वजह से रेशियो एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जैसे कि इज़ ओनली लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल रेशियोज. मतलब कि सिंगल रेशियो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है सिंगल रेशियो का जो यूज़ है वो. मतलब कि सिंगल रेशियो इज़ मीनिंगलेस एज वो कोई क्लियर पिक्चर नहीं प्रेजेंट करता है, और कई बार इट फॉर्म्स अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द कंडीशन इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑफ द फर्म. तो ये ज़रूरी होता है कि डिफरेंट रेशियोज़ के सारे कंबाइंड इफ़ेक्ट्स को कंसीडर करा जाए. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट ओरिजिनल डेटा.
इस पे ये कह सकते हैं कि अगर हमने डेटा गलत दिया तो डेटा गलत होगा तो हमारे बिजनेस की गलत पोजीशन रिफ्लेक्ट होगी, हमारे जो बिजनेस का हम ओपिनियन फॉर्म करेंगे वो गलत होगी। तो जो डेटा होता है अगर वो इनकरेक्ट है तो उसका इफेक्ट हमारे बहुत एडवर्स पड़ सकता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। There is no single standard ratio against which the actual ratio can be compared. Next is it is only a medium of interpretation. Ratios are the tools of analyzing and interpreting the financial position of the concern. ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है दैट शुड बी गिवन टू दोज आइटम्स विच एक्चुअली रिक्वायर्स द इन्वेस्टिगेशन। Next is effect of price level changes. In ratio analysis, no attention is paid in financial statements on changes in price level for calculating ratios. Next is misleading results in the absence of absolute data. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास में एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो मिसलीडिंग इफेक्ट देंगे, मतलब कि प्रॉपर हमको सही इफेक्ट नहीं होगा। हमारे अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो जो हैं वो उनमें अगर गलतियां होंगी या उनमें अगर कुछ कमियां होंगी तो वो सब जो लिमिटेशंस है, वो सब जो प्रॉब्लम्स है, वो सब जो फॉल्स इफेक्ट है, वो सब रेशियो एनालिसिस में भी रहेंगे। नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर। रेशियो एनालिसिस के टाइम पर क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती है बिकॉज रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन मनी। Next is historical analysis. Ratios are basically based on past records, so they cannot be used in trend analysis. And because it is based on past figures, past records, so historical analysis is done in this ratio. Figures का historical जो values होती है उनका analysis किया जाता है। नेक्स्ट इज रॉन्ग इफेक्ट बाय लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। जो एनालिसिस कर रहा है उसके पास में अगर अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होगी, उसको प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसको बेसिक स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी अकाउंटिंग के, तो उसका इफेक्ट गलत पड़ेगा। और एज वी नो कि रेशियो एनालिसिस जो होता है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का के बेस पर होता है, तो अकाउंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल्स पर बनते हैं। तो मिस्टेक्स जो होती हैं, अगर ऐसे रिकॉर्ड्स में अगर मिस्टेक्स होंगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मिस्टेक्स होंगी, तो वो रेशियो एनालिसिस के यूज़ को लिमिटेड कर सकती हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल बायस होते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज जो होते हैं वो जो एनालिस्ट होता है उसकी अपनी खुद की एबिलिटी और पर्सनल एबिलिटी और बायस से अफेक्टेड होता है। इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट ओनली हेल्प्स अस टू डिटरमाइन more financial position about the company. It cannot be the substitute of financial statement. Financial statements तो बनाने मैंडेटरी हैं ही हैं, वो तो हर बिजनेस में बनेंगे, उनके बिहाफ पर ही उनकी ही फिगर्स को लेकर के रेशियो एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा दीज आर बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशंस विच आर सप्लाइड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सिर्फ वो जो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं वो ही सिर्फ काफ़ी नहीं होती हैं रेशियोज के कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट सो हेयर द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। हमारे जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, उसके अलावा एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। So now here we will be going to discussing our all ratios. First is liquidity ratio. Liquidity ratios are the ratios which are calculated to find out or check the short term liquidity position of the company or of the business. मतलब कि business की जो paying capacity है उसको calculate करने के लिए जो ratios use लिए जाते हैं those are liquidity ratios.
इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पता करने के लिए ऐसे रेशियोज कैलकुलेट करे जाते हैं कि हमारा जो बिजनेस कंसर्न है वो फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उसकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है उनका इमीडिएट पेमेंट कर सकती है कंसर्न। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करे जाते हैं। तो वी सेड दैट दिस रेशियो इज कंप्यूटेड टू नो whether the concern is able to make immediate payment of its current liabilities in the near future. अगर if some such necessity arises then ये वाले जो रेशियोज होते हैं ये क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए और भी जो लोग हैं जो कि हमारे कंपनी के अंदर छोटे पीरियड के लिए मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ऐसे रेशियोज यूजफुल होते हैं। ये कंपनी की एबिलिटी को शो करते हैं कि कंपनी जो होता है वो फाइनेंशियल जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है नहीं कर सकती है। इसके कुछ रेशियोज होते हैं। फर्स्ट इज करंट रेशियो। Current ratio is the ratio which actually establishes the relationship between current assets and current liabilities, and it actually measures the liquidity to meet the short term debt obligations. करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1। करंट रेशियो जो होता है ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट इज क्विक रेशियो। Current ratio is not a conclusive index of the real liquidity position of the firm. तो ये पॉसिबल हो सकता है कि करंट रेशियो फर्म का, इंडस्ट्री का तो बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी जो कंपनी है वो उसके पास भी कुछ सफिशिएंट फंड्स नहीं हो इमीडिएट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो भी इसको कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री की लिक्विडिटी पोजीशन को असरटेन करने के लिए। ये जो रेशो होता है ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो कि कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट करी जा सकती है या जिनकी वैल्यू बिना किसी लॉस के इमीडिएट रियलाइज करी जा सकती है। इसका जो सेटिस्फैक्ट्री करंट फाइनेंशियल कंडीशन होती है, अगर इसका रेशियो 1:1 होता है तो दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट रेशियो इज 1:1। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ये जो रेशियो होता है इसको सुपर क्विक रेशियो भी बोलते हैं या इसको कैश पोजीशन रेशियो भी बोल सकते हैं। ये जो रेशियो है इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। अब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है कि कैश इन हैंड हो गया, जैसे कैश एट बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया। ये जो रेशियो होता है इट एग्जामिन्स द एब्सोल्यूट लिक्विड पोजीशन। अगर इसका रेशियो 1:1 होता है तो मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो फर्म है उसके पास इनफ कैश है उसके क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, और ये भी दिखाता है कि जो फर्म है वो क्रेडिट परचेज पर कोई भी किसी भी तरह का कोई अटेंशन नहीं दे रही है और शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक के यूज़ को भी अवॉइड कर रही है। नेक्स्ट इज लीवरेज रेशियोज। लीवरेज रेशियोज या इसको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज भी कह सकते हैं। जो लीवरेज रेशियोज होते हैं दे आर कैलकुलेटेड check the long-term liquidity position of the business to judge the long-term financial solvency of the firm. ऐसे रेशियोज जो ओनर और इन्वेस्टर्स, जो ओनर और आउटसाइडर्स जो होते हैं वो जो फंड इन्वेस्ट करते हैं उनको रिवील करता है, उनको बताता है। ऐसे रेशियोज दिखाते हैं कि ओनर ने बिजनेस के अंदर कितना पैसा, कितना अमाउंट डाल रखा है। तो दोज रेशियोज आर जनरली बेनिफिशियल टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए या डिवेंचर होल्डर्स हो गए, उन्हीं के लिए। जो ओनर की इक्विटी होती है वो एक तरह से क्रेडिटर्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है।
अगर इक्विटी बेस कम है तो क्रेडिटर रिस्क जो होता है वो हाई होता है। तो लिक्विडिटी रेशियोज जो होते हैं ये एक तरह से फाइनेंशियल रिस्क को मेज़र करने के लिए कैलकुलेट करे जाते हैं और बिजनेस की एबिलिटी जो होता है, बिजनेस की जो एबिलिटी है ऑफ यूजिंग इट्स डेप्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स, उसके लिए वो कैलकुलेट करे जाते हैं। इसके कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो जो होता है इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और शेयर होल्डर्स फंड। इस रेशियो को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि डेप्ट और इक्विटी का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए ये रेशियो कैलकुलेट करा जाता है। दिस रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय द कंपनी। जितना हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है इट शोज द कि जो क्लेम्स है क्रेडिटर्स के दैट आर ग्रेटर देन द ओनर्स। तो जो हाई रेशियो होता है दैट इज़ अनफेवरेबल अगर ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ये इस रेशियो को नेट वर्थ या एक तरह से शेयर होल्डर्स इक्विटीज टू टोटल असेट्स रेशियो भी कह सकते हैं। ये जो रेशियो होता है इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन नेट वर्थ और जो टेंजिबल असेट्स हैं टू उसकी टोटल टेंजिबल असेट्स है वो होता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज फिक्स असेट रेशियोज। फिक्स असेट रेशियोज जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बिजनेस की जो होती है उसको रिवील करते हैं। ये रेशियो जो होते हैं ऐसी पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल होते हैं जो कंपनी को, जो कि फर्म को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। जनरली लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं दे आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो ये जो रेशियो होता है इट एक्सप्रेसेस द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटेड टू लोन प्रोवाइडर ऑल्सो। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो। इसको डेप्ट टू टोटल असेट रेशियो भी कह सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मेज़र करने के लिए यूज़ में आती है। ये जो रेशियो होता है ये फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि देर आर द फंड्स ऑफ द कंपनी सफिशिएंट टू मीट इट्स टोटल लाइबिलिटीज़। ये रेशियो पता करता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। जितना हायर सॉल्वेंसी रेशियो होता है क्रेडिटर्स के लिए उतना ही अनफेवरेबल होता है। नेक्स्ट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसको कैपिटल गियरिंग रेशियो या गियरिंग रेशियो भी कह सकते हैं। ये फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। नाउ यू विल थिंक व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। तो मैं बता देती हूँ, फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जिसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए हुज रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है जिसका, या प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गया जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल होता है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो रेगुलर चेंज होता रहता है। इसके अंदर जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया या रिजर्व हो गए या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए वो सब आता है। जितना ज़्यादा हाई रेशियो होगा इसका फर्म के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी द ओनर्स विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एंड वाइल एट टाइम ऑफ डिप्रेशन अगर होगा तो दे विल हैव टू सफ़र अ लॉट बिकॉज they will have to pay the interest whether the firm is in loss and profit. Next is preference dividend coverage ratio. This ratio is calculated by dividing net income after interest and tax with the preferential dividend. प्रेफरेंस डिविडेंड का हमको पता है जनरली वो फिक्स्ड होता है। तो ये जो रेशियो होता है ये आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है क्या प्रोपोर्शन है प्रॉफिट का और प्रेफरेंस डिविडेंड का, ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज डेब्ट सर्विस रेशियो। ये रेशियो नेट प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है।
इस रेशियो को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव होता है to determine the debt servicing capacity of the firm so far as fixed interest of long term debt is concerned. इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर हमको एक तो नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमको दोनों चाहिए होते हैं. जितना ज़्यादा हाई होगा ये रेशो उतना ही ज़्यादा लेंडर्स के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये रेशो जो होता है ये लेंडर्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेज़र करता है, पता करता है. और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है या डेब्ट सर्विस रेशियो भी इसको कहते हैं जो या टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो भी इसको कह सकते हैं. ये इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द इनकम out of which those charges will be paid. Next is cash to debt service ratio. जनरली जो सारे डेब्ट्स और इंटरेस्ट होते हैं ये कैश में ही पेबल होते हैं तो हेंस टू फाइंड द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इंस्टेड ऑफ नेट इनकम द टोटल कैश फ्लोज ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड मस्ट बी कंसिडर्ड. नाउ हेयर आर सम एक्टिविटी रेशियोज जिसको एफिशिएंसी रेशियोज भी कहते हैं. तो एक्टिविटी रेशियोज ये कह सकते हैं कि देज आर दोज रेशियोज विच मेजर्स एज हाउ एफिशिएंटली द असेट्स आर बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस. मतलब कि ये रेशियोज कैलकुलेट करे जाते हैं टू एवेल्युएट द एफिशिएंसी विद विच द फर्म मैनेजेस और यूटिलाइज करती है अपनी एसेट्स को. इन रेशियोज़ को टर्नओवर रेशियोज़ भी कह सकते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं द रेपिडिटी विद विच द असेट्स आर बीइंग कन्वर्टेड या टर्न इनटू ओवर सेल्स. एंड इसके अंदर कुछ रेशियोज़ आते हैं जैसे कि फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं इसको. It shows the speed with which the stock is rotated into sales or the number of times the stock is converted into sales during the years. It reflects the efficiency of inventory management, we can say. जितना ज़्यादा higher inventory turnover ratio होगा वो shows the more sales by a rupee of invested in stock, जबकि जो lower होगा that will result in blocking of funds in inventory. इसको ये भी समझ सकते हैं कि higher stock turnover ratio indicates that excess trading is being done even on low stock also, and the storing और other expenses जो होते हैं relating to stock are also lower. जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो ये भी बताता है कि साल में कितनी बार परचेज करी गई है. नेक्स्ट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज जो ट्रेड डेटर्स हैं उनके बीच में. इस रेशियो को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें ये पता लगे कि ऐसी एफिशिएंसी पता लगे जिससे कि ट्रेड डेटर्स जो हो रहे हैं वो मैनेज हो रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी को पता करने के लिए एक तरह से ये वाला रेशियो कैलकुलेट करा जाता है. इस रेशियो के अंदर क्रेडिट सेल्स और ट्रेड डेटर्स वगैरह आते हैं. इसमें एक एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है या डेटर्स वेलोसिटी भी होता है. ये जो पीरियड होता है ये एक तरह से एवरेज पीरियड होता है फॉर विच द क्रेडिट सेल्स रिमेन आउटस्टैंडिंग एंड मेजर्स द क्वालिटी ऑफ डेटर्स. ये स्पीड बताता है विद विच द मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. जैसे कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड डेटर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वैसे ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज डेटर्स के बीच में भी रिलेशनशिप बताता है. इस रेशियो को कैलकुलेट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच द क्रेडिटर्स आर मैनेज्ड बाय द कंपनी. नेक्स्ट इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो.
इस रेशो को टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं। ये रेशो कैलकुलेट करा जाता है बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशो दिखाता है कि कितना इफेक्टिवली और प्रॉफिटेबली जो फिक्स्ड असेट्स हैं बिजनेस की वो यूज में आ रही हैं। ये रेशो इम्पॉर्टेंट है और मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, अप्रोप्रिएट भी है। Since sales are produced not only by the use of working capital but also by the capital invested in the fixed assets। तो अगर ये रेशो कम होता है, लोअर होता है, तो एक्सपेक्टेशंस जो होता है देन एक्सपेक्टेशंस से अगर लोअर होता है तो इट इंडिकेट्स दैट द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट बीइंग इफेक्टिवली यूज्ड या प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं उनका। और मैनेजमेंट जो है ऑफ कंसर्न जो है वो वीक है। और हायर रेशो जो है वो ये इंडिकेट करता है कि एसेट्स जो हैं वो रेगुलरली और इफेक्टिवली प्रॉपर मैनेज्ड हो रही है, प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है। बट बहुत ज़्यादा जो हायर रेशो होता है वो भी दैट इज़ सिंपल ऑफ ओवर ट्रेडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत ज़्यादा हायर भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। ये जो टर्नओवर रेशो होता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स बाय नेट फिक्स असेट्स जो होता है उससे आती है, उससे कैलकुलेट होता है। ये रेशो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि सेल्स आर प्रोड्यूस नॉट ओनली बाय द यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल बट ऑल्सो बाय द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट्स। अगर इस रेशियो में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो दैट इज़ अ सिंबल ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। और अगर डिक्लाइन होता है तो ये शो कर सकता है कि कंपनी की एफिशिएंसी जो हो रही है वो डिक्लाइन हो रही है या इन्वेस्टमेंट जो है इम्प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो होता है इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस और सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कंपनी एम्प्लॉयड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये बताता है। जितना ज़्यादा हाई होता है ये रेशियो उतना ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही बताता है। बहुत ज़्यादा अगर हाई होगा रेशियो तो इट विल इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ ओवर ट्रेडिंग इन द बिजनेस। नेक्स्ट इज नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि ओनर्स के जो फंड्स हैं वो कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करे जा रहे हैं। हाई रेशियो इज़ अ सिंबल ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ओनर्स फंड। बट बहुत ज़्यादा अगर हाई रेशियो होता है तो अगेन इट विल इंडिकेट द ओवर ट्रेडिंग। और जो लो रेशियो होता है वो अंडर ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है जो कि बिजनेस के लिए ओनर्स के लिए कंसर्न के लिए अनफेवरेबल होती है। नेक्स्ट इज करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो जो होता है ये बहुत यूज़फुल है नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए क्योंकि सेल्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली बाय करंट असेट्स एज कंपेयर टू फिक्स्ड असेट्स। तो दिस रेशियो इंडिकेट्स इफेक्टिव यूज ऑफ करंट असेट्स। ज़्यादा या लेस इन्वेस्टमेंट होता है करंट असेट्स का तो वो सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न को भी अफेक्ट करता है। Next are profitability ratios. So profitability ratios are basically based on sales, capital employed, and these are also based on earnings. Profitability ratios जो होते हैं वो ऐसे रेशियोज होते हैं जो कि कंपनी की प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न होता है क्योंकि प्रॉफिट्स आर नेसेसरी टू सर्वाइव एंड ग्रो ओवर द लॉन्ग टाइम ऑफ द बिजनेस ऑफ द पीरियड। बेसिकली इट इज़ द फाइनल आउटपुट ऑफ द कंपनी, मतलब कि प्रॉफिट जो होता है वो फाइनल आउटपुट होता है कंपनी। और अगर फेल हो जाता है ये सफिशिएंट फंड बनाने में, सफिशिएंट प्रॉफिट्स बनाने में, तो इसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है वो एक तरह से दो वर्ड से मिला हुआ है, प्रॉफिट और एबिलिटी। मतलब कि बिजनेस की या कंपनी की
प्रॉफिट्स को अर्न करने की, उनके इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट्स को अर्न करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। अकाउंटिंग अगर पर्पस की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यूज़ और टोटल एक्सपेंसेस को अगर देखें तो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज़ ओवर द टोटल एक्सपेंसेस होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो वो प्रॉफिट कहा जाता है। और जो एबिलिटी होती है वो होती है एक तरह से कि कैपेसिटी, किसी भी कंसर्न की जो पावर होती है उस प्रॉफिट्स को अर्न करने की कैपेसिटी जो होती है वो एबिलिटी मानी जाती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ गिवन इन्वेस्टमेंट टू अर्न अ रिटर्न फ्रॉम इट्स यूज़। प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द अर्निंग्स टू द टोटल रिसोर्सेज ऑफ द कॉरपोरेशन। ये जनरली जैसा कि आपको भी मैंने पहले बताया था कि सेल्स और कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड होते हैं, उसके अलावा ये कुछ होते हैं जो कि अर्निंग्स पर भी बेस्ड होते हैं। सो हम सबसे पहले बेस्ड ऑन सेल्स की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विच आर बेस्ड ऑन सेल्स। तो फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विच इज़ बेस्ड ऑन सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या इसको ग्रॉस मार्जिन रेशियो भी कहते हैं। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। और जनरली ये जो रेशो होता है ये परसेंटेज के अंदर ही एक्सप्रेस करा जाता है। ये रेशो होता है ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जितना हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो होगा उतना ही अच्छा हमारे मैनेजमेंट होगा, उतना ही बढ़िया हमारा मैनेजमेंट होगा। दैट मीन्स हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो इज़ अ सिंबल ऑफ गुड मैनेजमेंट। और अगर एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो अगर एक्सपेक्टेशन से कम है तो इट प्रोवाइड्स दैट जो प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर दैट इज नॉट सफिशिएंट इन द कंपैरिजन टू सेल्स। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो बिजनेस के लिए हेल्दी नहीं होती है। तो इसीलिए लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो जो होता है शुड बी केयरफुली कंसर्न। ये हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आ सकती है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन की वजह से आ सकती है प्लांट एंड मशीनरी का। उसके अंदर नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। जितना ज़्यादा हाई रेशियो होगा बिजनेस के लिए उतना ही फेवरेबल होगा, क्योंकि वो बिजनेस की साउंड मैनेजमेंट और एफिशिएंसी दिखाएगा। जितना लो इसका रेशियो होगा वो प्रॉफिट्स में और मैनेजमेंट डिक्लाइन दिखाएगा, मतलब कि मिस मैनेजमेंट वो एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो shows the relationship between operating net profits before interest and tax with net sales. Next is operating ratio. Operating ratio जो होता है it is calculated by dividing operating cost by the net sales. हाई ऑपरेटिंग रेशियो जो होगा ये अनफेवरेबल होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है फर्म का दैट शुड बी कंपेयर्ड विद द रेशियोज ऑफ सिमिलर फर्म्स और इंडस्ट्री एवरेज ऑल्सो, एंड इट विल एक्चुअली रिवील द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी। तो दीज आर रिलेटेड, जो ऑपरेटिंग रेशियोज होते हैं दीज आर रिलेटेड टू कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। Next is based on capital employed, profitability ratios which are based on capital employed. So first is return on total assets. जो रेशियो होता है it shows the relationship between net profits after tax but before interest with the total assets. इस रेशियो को कैलकुलेट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू फाइंड आउट हाउ एफिशिएंटली द टोटल असेट्स हैव बीन यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। ये जो रेशो होता है इट रिवील्स द प्रॉफिटेबिलिटी टू टोटल असेट्स, शोज हाउ एफिशिएंटली द असेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। तो जितना हाई रेशो होता है उतना ही बिजनेस के लिए मैनेजमेंट के लिए कंसर्न के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट इज रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो रेशो होता है इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ये एक प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत बेसिक मेज़र होता है। ये बताता है कि मैनेजमेंट कितना अच्छा चल रहा है एंड हैज़ यूज्ड द फंड सप्लाइड बाय द क्रेडिटर्स टू द ओनर्स ऑल्सो।
एंड द ओनर्स। तो ये एक तरह से प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को मेज़र करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ये प्रॉफिट मार्जिन और टर्नओवर का प्रोडक्ट होता है, मतलब दोनों से मिला हुआ होता है। और ये रेशो इट कैलकुलेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ये हेल्प करता है हमें पता लगाने के लिए कि मैनेजमेंट जो है वो किस एक्सटेंट तक सक्सेसफुल है इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द यूज ऑफ बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट इज रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर फंड या इक्विटी भी कह सकते हैं। इस रेशियो के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो मेज़र करी जाती है बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू बाय विद द टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं टू नो द अर्निंग पावर ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर का जो फंड होता है उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम शेयर प्रीमियम रिजर्व सरप्लस ये सब कुछ आता है। इसको नेट वर्थ भी कहते हैं इसको। तो दिस इज द फाइनल इनकम विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज रिटर्न्स ऑन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वी ऑल नो दैट दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द फर्म। तो हमें ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है कि हम कैलकुलेट करें रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। Next is profitability ratios which are based on earning on shares. So first is earning per share. We also know it as EPS. It determines the earnings which are available to on per equity share. This ratio determines the earning which are available on per equity share. इस रेशियो को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव होता है हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, इक्विटी शेयर्स के ऊपर फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को पता करना। जितना ज़्यादा होगा हमारा हायर द फिगर द मोर अर्निंग पर शेयर। जितना ज़्यादा हमारा फिगर होगा उतनी ही ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगी हमारी। मतलब कि बेटर इज़ द परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा अगर ईपीएस का अर्निंग पर शेयर का, तो it will increases the possibility of more dividend and bonus shares which finally has a favorable effect on the market value of the share. तो ये जो रेशियो होता है it assists in evaluating the prevailing market price of share in the light of earning capacity of the firm. ये जो रेशियो है it must not be used blindly. फाइनेंशियल डेटा जो होता है फ्रॉम विच ये रेशियो कैलकुलेट करा जाता है दैट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व्ड। देन नेक्स्ट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो इंडिकेट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर at some future date and it determines whether the share of a particular firm are overvalued or are they undervalued. Then next is dividend per share. So dividend per share is calculated by dividing the dividend paid to equity shareholders by the number of equity shares. जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ही ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि ये रेशो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो एज अ प्रॉफिट कितनी इनकम रिसीव करेंगे। तो जनरली कोई भी कंपनी होती है दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंटायर प्रॉफिट एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर। कुछ पार्ट जो होता है प्रॉफिट का वो अपने लिए रिजर्व में फ्यूचर के लिए एज अ रिजर्व वो रख लेते हैं। देन नेक्स्ट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होता है ये पता करता है कि कैश डिविडेंड जो है आफ्टर टैक्स एज अ कैश डिविडेंड है कितना, हाउ मच प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कितने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एज कैश डिविडेंड, और रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए कितने प्रॉफिट्स हमारे पास में रखे हैं हमने। नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो। ये रेशियो बताता है इन्वेस्टर को कितना डिविडेंड रिसीव होगा अगर he buys the shares from the open market.
नेक्स्ट इज रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल रेशियो। ये रेशियो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द फर्म ऑफ द कंसर्न। जितना हाई रेशो होगा तो वो शो करेगा कि कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है दैट इज कंजर्वेटिव है, क्योंकि कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी जो है उसमें प्रॉफिट्स का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो एज अ रिजर्व्स रख लिया जाता है। तो हायर द रेशियो द मोर साउंड विल बी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स की जो बुक वैल्यू होगी वो हाई होगी। सो आई होप आप लोगों को ये सब रेशियो समझ में आए होंगे, एक जनरल इनका मीनिंग समझ में आया होगा, ये किस लिए यूज़ में लिए जाते हैं, किस तरह से यूज़ में लिए जाते हैं, इनकी हायर होता है तो क्या होता है, लोअर होते हैं अगर ये रेशियोज तो क्या होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, एक्टिविटी रेशियोज कौन से होते हैं, नॉर्मल रेशियोज कौन से होते हैं, नॉर्मल इन द सेंस करंट रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज कौन से होते हैं, या आपके लिक्विडिटी रेशियोज कौन से होते हैं, वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।